Hello, my students. I hope you all are very well at your home. And I'm very glad to let you know that luckily I have got class 11th English books, which I'm going to deal with, of course, for all of you. And the book today I have got that is Hornbill. And in Hornbill, the very first poem is a photograph that I'm going to deal with today. So, as the title says, a photograph. Whenever you capture any photo, you do not capture only the image, you do not capture only the moment, but you capture the memory, obviously. And that memory you can relive again and again. So, the same thing is going with the poet. This poem has been composed by Shreely Towson, and she is looking up at the image of her mother. And let's just read out the poem. It may be that many of you may not be having books, so I'm going to read out the lines so that it can be easy to understand. So, the first stanza, the poet says, "The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling." कार्डबोर्ड यहाँ किस लिए यूज़ हुआ है? फोटोग्राफ के लिए. Shows me how it was when the two girl cousins went paddling. उस फोटोग्राफ में पोएट की माँ है और उनके दो कज़न्स हैं. मतलब देर आर टोटल 3 गर्ल्स इन द इमेज जो पैदल चल रही हैं माने ऑफकोर्स पिक्चर में चल नहीं रही हैं, वो एक जगह पे हैं, लेकिन सी बीच की ये इमेज है जहाँ पे वो पैदल घूम रही थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. मतलब पोएट की जो माँ है वो बीच में है और दोनों साइड उनके कज़न्स हैं जिन्होंने उनकी माँ के हाथ पकड़े हुए हैं. ये पिक्चर कब की है? जब पोएट की माँ छोटी थी. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. All three is very much clear that there are 3 girls in the image. Stood still, matlab they are giving pose to be captured. Still through their hair. Hair का मतलब यहाँ पे हो गया कि बहुत हवा चल रही होगी जिसकी वजह से उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं. At the uncle with the camera. समवन वॉज देयर टू कैप्चर दैम अप, तो इसलिए वो उस कैमरे की तरफ देख रही हैं. अब पोएट उनकी माँ की फेस को देखते हुए कहती हैं अ स्वीट फेस, क्योंकि उनकी माँ उस वक्त छोटी थी. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. वो पिक्चर काफ़ी पहले की है, तो पोएट कह रही हैं ये फ़ोटो तब की है जब मैं पैदा नहीं हुई थी. एट द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. ये सी तो बहुत कम चेंज हुआ है तब के वक्त से लेके आज तक में, लेकिन उनकी माँ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं. तब वो 12 साल या कुछ की थी, अभी वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं. और आगे की लाइन लिखी हुई है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. लेकिन वो जो सी है वो काफ़ी कम चेंज हुआ है, या कह सकते हैं नहीं चेंज हुआ है, वो वैसा ही है. लेकिन उनकी माँ के और उनके कज़िन्स के पैरों के निशान वहाँ से मिट गए हैं. मतलब ये बहुत पुराने समय की बात हो गई है. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन while explaining in the first stanza. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. In these lines, the poet is looking at an old photo album which is made up of cardboard. In the picture, there are 3 girls who are walking on the beach. The girl in the middle is the tallest one, or you can say the eldest one. And who is she? The poet's mother. The 2 other girls are on each side because they were younger. The girl in the middle is the poet's mother and she is around 12 years or so. उनकी उम्र उस वक्त 12 साल या कुछ ऐसे ही रही होगी. The next lines are, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Transient का मतलब होता है temporary. So in the above lines, the poet describes how the photograph was taken. Her mother's uncle took the photograph, or someone was there to capture of the moment, and maybe she was calling him uncle, and he just told them to pose for the photo.
and all three of them left their wet hair open and smiled at the camera, which often girls do. And the poet's attention is drawn towards her mother's face, which is described as sweet face because it was her childhood moment. The photograph was taken long before the poet was born, and the poet calls their feet terrible transient, as they were so young by then and now they have grown older and the time has changed, completely changed. On the other hand, the poet is saying that sea has not changed, means the natural things are not going to change, but we, with the time, we are going to change physically, mentally, emotionally, everywhere we are going to change. And the next line, some 20-30 years later, मतलब उस फोटो के लेने के 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उनकी माँ उस फोटो को देख के हंस रही हैं. सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, और वो क्या कहती हैं पोइट से, लुक हाउ दे ड्रेस्ड आस फॉर द बीच, हम लोग बीच पे जाने के लिए हम लोगों को कैसे तैयार किया जाता था, देखो. दिस इज़ वेरी कॉमन सिनेरियो इन एवरी हाउस. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और लेकिन अब वो पास्ट की बातें हो गई हैं कि इस हॉलीडे है और वो सी पे जा रही हैं और अपने कज़न्स के साथ घूम रही हैं. माइन इज़ हर लाफ्टर, और अब क्या है, वो सिर्फ हंस रही हैं उस फोटोग्राफ को देख करके, क्योंकि अब वो पास्ट हो चुका है. बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज़ ऑफ लॉस. लेबर्ड ईज़, ये बहुत ही खूबसूरती से इसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है. लेबर्ड मतलब व्हेन वी गेन समथिंग विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और ईज़ मतलब जब हमें कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है. लेकिन यहाँ लेबर्ड ईज़ है जो ऑक्सीमोरोन है, ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्शंस वे में यूज़ हुआ है. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. एक्चुअली आफ्टर 20 or 30 years later शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ. पोइट अभी याद कर रही है कि इस फ़ोटो के लेने के 20-30 साल बाद मेरी माँ देख के इसको हंसा करती थी और देखती थी, बोलती थी कि देखो कैसे हमें उस वक्त तैयार किया जाता था. दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ एंड हाउ दे यूज़ टू वॉक ऑन द बीच ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज़. लेकिन अब ये सारी बातें क्या हो गई हैं, पास्ट की बात हो गई हैं. द पोइट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट, while the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter. पोइट के लिए, पोइट की माँ के लिए फ़ेवरेट टाइम क्या था, जब वो हॉलीडे पे सी बीच पे जाती थी. लेकिन पोइट के लिए फ़ेवरेट टाइम क्या है, जब वो अपनी माँ को हंसते हुए देखती थी. क्यों कह रहे हैं, बिकॉज नाउ द पोइट्स मदर इज़ नो मोर एंड शी इज़ लुकिंग एट द इमेज दैट वॉज टेकन इन हर मदर्स चाइल्डहुड. और अब उस इमेज को देख के अपनी माँ को याद कर रही हैं, और कैसे उनकी माँ अपने बचपन की कहानियाँ बता के हंसती थी, उस मोमेंट को याद कर रही हैं. सो द पिक्चर इज़ रियली वेरी पावरफुल हियर. एंड नाउ बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट इट. वॉट लॉस्ट, क्योंकि उनकी माँ को लगता था कि अब वो ये समय खो चुकी हैं, दोबारा उनका बचपन लौट के नहीं आने वाला. और पोइट को ये लग रहा है कि अब वो अपनी माँ को खो चुकी हैं, दोबारा वो लौट के नहीं आने वाली. सो इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. अब वो नहीं हैं और उन्हें मरे लगभग उतने ही साल हुए जितने साल की ये लगभग थी फ़ोटो में. इसका क्या मतलब है, उस वक्त जब ये फ़ोटो ली गई थी तो उनकी माँ की उम्र क्या थी, लगभग 12 साल. और इस वक्त उनकी माँ को मरे कितना टाइम हो गया है, लगभग 12 साल. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. सी समटाइम्स वी हैव सो मेनी थिंग्स टू से दैट वी बिकम ब्लैंक. कभी कभी हमारे पास कहने के लिए इतना कुछ होता है कि हम कुछ नहीं कह पाते. तो बस ऐसी ही कुछ बात है कि वो उस फ़ोटो को देख रही हैं, अपनी माँ को याद कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये फ़ोटो है और बहुत सारी यादें हैं. सो इन द अबव लाइन्स द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 years ago, द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ. Whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. Death has silenced her mother and she has become silenced because of her great loss, because she was very much close to her mother. और अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ एक खामोशी है जो अगर रीडर्स समझ सकते हैं, सो दैट साइलेंस इज़ फुल ऑफ पेन. एक
साइलेंस होता है जो कि पीस होता है, बट हेयर पीस यू कैन नॉट फाइंड हेयर. इफ़ यू try to find out the lines, between the lines, if you find out the meaning, you will get that it is full of pain of loss, जो हम किसी को खो देते हैं. So this was the explanation of the poem.